دور کسی جنگل میں سبھی پکشی اپنے اپنے پریوار کے ساتھ بہت خوشی کا جیون بتا رہے تھے۔ اسی جنگل میں ایک کبوتر اور کبوتری بھی رہتے تھے جو اپنے بیٹے ککی کی وجہ سے بہت پریشان تھے، کیونکہ ان کا بیٹا کوئی بھی چیز شوق سے خوش ہو کر نہ کھاتا۔ وہ ہر کھانے والی چیز کو ضائع کر دیتا، آدھی کھا کر آدھی پھینک دیتا۔ آج تو وہ صبح سے روئے جا رہا تھا اور ایک نئی اور انوکھی ضد کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا مما پاپا، میں کھاؤں گا تو صرف مینگو کھاؤں گا، مجھے کہیں سے بھی مینگو لا کر دے۔ کیونکہ بیٹا جنگل میں ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے اور اس موسم میں مینگو نہیں ہوتے، بیٹا ہم آپ کو کہاں سے مینگو لا کر دیں؟ تو پھر میں بھوکا ہی رہوں گا، مجھے مینگو چاہیے، میں مینگو ہی کھاؤں گا۔ بیٹا سمجھ جاؤ، ہر پھل کا کوئی موسم ہوتا ہے اور مینگو تو گرمیوں کا پھل ہے، سردیوں میں مینگو نہیں ہوتے۔ مگر وہ چھوٹا بچہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ چڑیا جو کبوتر کے پاس میں ہی رہتی تھی، وہ کبوتر کے بیٹے کی رونے کی آواز سن کر وہاں آ جاتی ہے۔ میں کب سے سن رہی ہوں ککی بیٹا، آپ کیوں روئے جا رہے ہیں؟ چڑیا بہن کیا بتاؤں، گھر میں اتنا بھوجن ہے، میٹھے پھل بھی ہیں، مگر ککی مینگو کھانے کی ضد کر رہا ہے۔ اب آپ ہی اسے سمجھائیں کہ اس موسم میں ہم اسے مینگو کہاں سے لا کر دیں۔ چڑیا بہت سیانی تھی، وہ ککی کو سبق دینا چاہتی تھی، اس لیے وہ ککی سے کہتی ہے، ککی بیٹا چلو آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو کہیں سے مینگو ڈھونڈ کر دیتی ہوں۔ مگر چڑیا بہن اس موسم میں کبوتر بھیا آپ ککی کو میرے ساتھ آنے دیں، مجھے پورا وشواس ہے ککی سب سمجھ جائے گا۔ پھر چڑیا ککی کو اپنے ساتھ لے کر جنگل میں چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دور بلبل کا گھر تھا، چڑیا ککی کو ساتھ لے کر بلبل کے گھر جاتی ہے۔ بلبل نے چولہے پر ایک دیگچی رکھی ہوئی تھی اور اس نے پانی میں ایک بیری کا پھل ڈال رکھا تھا۔ بلبل بہن آپ اپنے بچوں کے لیے کیا بنا رہی ہیں؟ بہن چڑیا کیا بتاؤں، ایسے ٹھنڈ کے موسم میں کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا ہے، مجھے ایک بیری کا پھل ملا تھا، میں نے سوچا ہم سب اسے ہی پکا کر کھا لیتے ہیں۔ بیری کا پھل اور وہ بھی اتنے سارے پانی میں آپ پکا رہی ہیں، وہ کیوں آنٹی؟ چڑیا یہی دکھانے کے لیے تو اسے یہاں لے کر آئی تھی۔ بیٹا ہمارے گھر میں اور کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، مگر ہم غریب پکشی کیا کریں، پیٹ بھی تو بھرنا ہے، اس لیے جو بھی ملتا ہے اسے بانٹ کر کھا لیتے ہیں۔ ککی بیٹا آپ کے گھر میں تو ڈھیر سارا بھوجن ہے اور پھر بھی آپ اپنی مما اور پاپا سے مینگو کھانے کی ضد کر رہے ہیں، چلو میں آپ کو کچھ اور دکھاتی ہوں۔ پھر چڑیا ککی کو ساتھ لے کر میٹھو طوطے کے گھر جاتی ہے۔ اب کیسے ہیں طوطے بھیا آپ؟ کیا بتاؤں چڑیا بہن، میرے گھر میں سب کچھ ہے، بھوجن بھی ہے، مگر میں کھا نہیں سکتا، مجھے 3 دن سے سخت بخار ہے، ڈاکٹر نے کچھ بھی کھانے پینے سے منع کر رکھا ہے۔ کیوں؟ وہ کیوں؟ مٹھو انکل آپ کو ڈاکٹر نے کھانے سے منع کیوں کر رکھا ہے؟ کیونکہ میں اگر تھوڑا سا بھی کچھ کھا لوں تو میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ ککی بیٹا آپ کے گھر میں تو کوئی بھی بیمار نہیں ہے، آپ سب سوستھ ہو، پھر بھی آپ بھگوان کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ مینگو نہیں تو کیا ہوا، آپ کے گھر میں تو اور بھی طرح طرح کے بھوجن ہیں جنہیں آپ کھا سکتے ہو، آپ یہ سب بھول کر کیول مینگو کھانے کی ضد کر رہے ہو۔ ککی چڑیا کی بات سن کر خاموش رہتا ہے۔ پھر چڑیا ککی کو ساتھ لے کر تھوڑا آگے جاتی ہے، جہاں ایک ٹوٹے ہوئے گھونسلے میں ایک کوا اور کوی بیٹھے ہوئے تھے۔ گوری بہن کیا ہو رہا ہے؟ کیا بتاؤں چڑیا، 3 دن سے بھوکے ہیں، جب سے ٹھنڈ شروع ہوئی ہے ہمیں کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا، آج بھی میں پورا جنگل گھوم کر آیا ہوں،
हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, कहीं से भी कोई दाना नहीं मिला। टिकी बेटा, किसी के पास भोजन थोड़ा है और किसी के पास खाने को कुछ भी नहीं है। कोई बीमार है तो कोई परेशान, और एक आप हो कि आपके पास सब कुछ है और फिर भी आप अपने मम्मा और पापा को तंग कर रहे हो। ये सब देखकर किकी रोने लग जाता है। आंटी, मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं तो इन सब पक्षियों से बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ और फिर भी मैं शुक्र नहीं करता। मैं शर्मिंदा हूँ अपने मम्मा पापा से भी और खुद से भी। प्लीज मुझे घर ले जाएं। हाँ बेटा, मैं यही चाहती थी कि आप ऊपर वाले की दी हुई हर चीज का शुक्र करो और बेमौसम के फल मांगकर अपने मम्मा और पापा को तंग ना करो। फिर चिड़िया किकी को साथ लेकर उसके घर वापस चली जाती है। किकी घर जाकर अपनी मम्मा से कुछ चावल लेकर मजे मजे से खा लेता है, क्योंकि अब उसे भूख भी लग गई थी। मम्मा पापा, सॉरी, आज के बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा, क्योंकि इस जंगल में बहुत से ऐसे पक्षी हैं मैं जिनसे बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। फिर कबूतर और कबूतरी चिड़िया को धन्यवाद बोलते हैं कि उसने किकी की सोच को बदल दिया था। वो आ गया, मूंगफली बेचने वाली का बेटा, वो आ गया। मम्मा कहती हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। पक्षी अपने कामों से नहीं बल्कि दूसरे पक्षियों से अपने व्यवहार से पहचाने जाते हैं। जो भी है, मूंगफली बेचना भी कोई काम है। मेरी मम्मा मूंगफली बेचती हैं और हमारे घर का गुजारा अच्छा हो रहा है। हम मेहनत करते हैं। मेरी मम्मा आपकी मम्मा की तरह दूसरे पक्षियों के घरों से चोरियां नहीं करती। ये सुनकर जग्गू चुप हो जाता है। मेहनत और ईमानदारी से काम करने में कोई शर्म नहीं। मैंने अपनी मम्मा से यही सीखा है। चिड़िया का बेटा कुकू जब भी बाहर जाता तो ऐसी कुछ बातें उसे अक्सर सुनने को मिलती। 1, 2, 3 और 4। अरे ये क्या, आज फिर हर रोज की तरह मेरे पैसे कम हैं। न जाने कौन सा पक्षी हर रोज मुझे चूना लगा जाता है। मम्मा, आप पैसे ध्यान से लिया करें। बेटा, सब पक्षी मेरे जाने वाले ही तो मुझसे मूंगफली लेने आते हैं, फिर मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है? कोई तो है जो आपसे मूंगफली ले जाता है और वो भी बिना पैसे दिए। हाँ, ऐसा तो है। फिर दूसरे रोज चिड़िया फिर से अपने खेत में जाती है और अपने मूंगफली के पौधों से मूंगफली तोड़ती है। वो पक्षियों को गरम गरम मूंगफली भून कर देती। उसी कारण चिड़िया की मूंगफली हाथों हाथ ही बिक जाती। मुझे जल्दी जल्दी से 100 रुपए की मूंगफली दे दें। चिड़िया, मुझे कहीं जाना है। इतनी भी क्या जल्दी है? गोरी बहन, ये ले, मैंने थोड़ी सी ज्यादा ही डाल दी है। गोरी कौवी मूंगफली ले लेती है और फिर रोज की तरह चिड़िया को बातों में लगाती है। चिड़िया, छुट्टियाँ कब खत्म हो रही हैं सर्दियों की? कुकू बता रहा था कि 1-2 दिन में स्कूल खुल जाएंगे। ठंड भी बहुत है। मैं तो जग्गू को ठंड के दिनों में स्कूल नहीं भेजूंगी। कबूतर भी उड़ता हुआ आता है। चिड़िया, मेरी बहन आई हुई है, मुझे 50 रुपए की गरम गरम मूंगफली दे दें। जैसे ही कबूतर आता है, गोरी कौवी बिना पैसे दिए जल्दी से वहाँ से चली जाती है और चिड़िया को पता ही नहीं चलता। फिर तो मैं आपको मोटी वाली मूंगफली देती हूँ। आपकी बहन मूंगफली खाकर खुश हो जाएगी। ऐसा करें, 60 की कर दें। फिर कबूतर भी चिड़िया को पैसे देता है और मूंगफली लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया को आग भी जलाना होती और मूंगफली को भूनकर बेचना भी होता। चिड़िया ऐसे सारा दिन काम करती। मम्मा लाए, मैं पैसे गिन देता हूँ। मैंने आज काम बहुत ध्यान से किया था। मुझे पूरा विश्वास है कि
आज पैसे पूरे ही होंगे। मम्मा, ये तो 120 रुपए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? 100 रुपए की मूंगफली तो मुझसे गौरी ने ली और फिर 60 की कबूतर ने। इसके अलावा बुलबुल तोता भी तो आए थे। मेरे पैसे आज फिर कम हैं। अगर ऐसा है तो मैं कल पकड़ूंगा उस चोर को जो मेरी मम्मा से मूंगफली बिना पैसों के ले जाता है। गौरी कौवी भी अपने घर में बैठी हुई थी। जग्गू, खाओ खाओ, मुफ्त की है। मैं हर रोज उस छोटी चिड़िया को बातों में लगाकर मूंगफली के पैसे दिए बिना ही आ जाती हूँ। ये सुनकर कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू हंसने लग जाते हैं। अपने बेटे की तरह वो चिड़िया भी पागल ही है। मम्मा, आप ऐसा ही किया करें। दूसरे दिन कुकू सीधा पुलिस के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। मैं जाता हूँ आपके साथ और आज पकड़ते हैं उसे। कौन है वो चोर? फिर कुकू पुलिस को साथ लेकर अपनी मम्मा से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाता है। पक्षी आते हैं और मूंगफली लेते हैं और पैसे देते हैं। अभी तक तो सारे ही पक्षी पैसे देकर जा रहे हैं। आखिर वो कौन है? शाम तक जो भी होगा वो पकड़ा जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद गौरी कौवी जग्गू को साथ लेकर आती है। चिड़िया, मुझे 100 रुपए की मूंगफली तो देना। आज मूंगफली पहले से ज्यादा स्वादिष्ट है। गौरी बहन, ये ले। चिड़िया चिड़िया, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मेरी माँ मूंगफली वाले लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनाती है। मैं अपनी माँ के हाथों के लड्डू खाने जा रही हूँ। मूंगफली वाले लड्डू तो मेरी माँ भी बहुत स्वादिष्ट बनाया करती थी। मुझे आज तक उन लड्डुओं का स्वाद याद है। चिड़िया, आग थोड़ी कम करो, तुम्हारी मूंगफली जल रही है। फिर तोता भी वहाँ आ जाता है। तोते को देखकर गौरी जग्गू को इशारा करती है और वो बिना पैसे दिए ही वहाँ से उड़ती है। पकड़ी गई। वो कौवी बिना पैसे दिए ही जा रही है। पुलिस, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। फिर पुलिस जल्दी से गौरी को पकड़ लेती है। तो ये तुम हो जो हर रोज चिड़िया को चूना लगा जाती हो। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया। ये तो जेल जाकर ही बताऊंगा। फिर पुलिस गौरी को जेल ले जाती है और जग्गू वहाँ से घर भाग जाता है। मम्मा, मैं ना कहता था कोई तो है जो आपको बिना पैसे दिए ही मूंगफली ले जाता है। तो ये गौरी कौवी थी। अब पता चलेगा इसे। जेल की हवा खाकर सीधी हो जाएगी। ऐसे गौरी कौवी को चोरी की सजा मिलती है। देखा प्यारे दोस्तों, चोर कितना भी होशियार हो, एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है।